everyone. Welcome to economics class. Today we will discuss about expenditure method. As we have already studied that there are three phases of circular flow of income. First is the production, second is the distribution of income, and third is disposition. In the previous videos, we have already discussed about value added method or the product method, then income method. In this present video, we will discuss about the calculation or the estimation of national income by using the expenditure method. Let's start the topic. According to expenditure method, national income is the sum total of expenditure on purchase of all the final goods and services produced in the domestic territory of a country during the period of an accounting year, including net factor income from abroad. Dear students, as we have already studied, the stage of disposition means the making of expenditure or incurring expenditure on the purchase of goods and services. So, from that very phase, we will derive the definition of national income, that is, it refers to the sum total of expenditure made on the purchase of all the final goods and services produced in the domestic territory of a country during an accounting year. It will provide us domestic, but we need national, so including net factor income from abroad. Now move to the next topic. Expenditure on final goods and services. Final expenditure or the expenditure on final goods and services refers to the purchase of domestically produced final goods and services during an accounting year. It is further classified into four categories. One is private final consumption expenditure, denoted by capital C. It means the expenditure made by the private individuals or the private households or the NGOs, means non-profit making organizations, and the main purpose is consumption, that is individual consumption. So the first component is private final consumption expenditure. Second is government final consumption expenditure. This is denoted by capital G. It is made by government sector and the main purpose is कलेक्टिव कंजम्पशन. सामान खरीदा जाता है, गवर्नमेंट खरीदता है प्रोड्यूसर सेक्टर से. जैसे हम कहें पार्क हैं, पार्क में बेंचेस लगाने हैं या पार्क में जिमिंग इक्विपमेंट्स लगाने हैं, या हम बात करें कि प्राइवेट गवर्नमेंट को व्हीकल्स खरीदने हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, या फ्लड विक्टिम्स के लिए मेडिसिन्स खरीदनी है, बिस्किट्स खरीदने हैं, blankets खरीदने हैं, all will come under government final consumption expenditure. Then investment expenditure. This is I. This I is investment expenditure. This is made by the producer sector on the purchase of plant, machinery, etc. Means for further production. Then net exports. Net exports, this is X minus M, where X refers to the exports and M refers to the imports. So the difference between exports and imports means net exports. Let's discuss these four components in detail. The very first one is private final consumption expenditure. It refers to the expenditure on final goods and services by the individuals, households and non-profit private institutions serving society like NGOs, and it includes consumer services. अगर सर्विसेज के बारे में हम पहले डिस्कस करके आए हैं, अगर मुझे हेयर कट कराना है तो मुझे ब्यूटिशियन की सर्विसेज देनी पड़ेंगी, मीन्स दिस इज सर्विसेज. देन कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल लाइक द मिल्क, ब्रेड, बटर एट्सेट्रा. देन कंज्यूमर ड्यूरेबल लाइक washing machine, refrigerator, color TV, etc. So this is private final consumption expenditure and this is denoted by capital C. Move to the next point. This is about government final consumption expenditure.
It refers to the expenditure on final goods and services by the government, like expenditure on the purchase of goods for collective consumption. बच्चे यहाँ ध्यान रखना, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है दैट इज मेंट फॉर कलेक्टिव कंजम्पशन, मीन्स कोई भी उसको यूज़ कर सकता है. अभी मैंने आपको बताया पब्लिक पार्क में बेंचेस लग रहे हैं तो इन बेंचेस पर कोई भी बैठ सकता है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिसिन अवेलेबल हैं, वो सबके लिए हैं. सो दीज आर मेंट फॉर कलेक्टिव कंजम्पशन एंड दीज आर डिनोटेड बाय कैपिटल जी. मूव टू द नेक्स्ट. दिस इज़ अबाउट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. बेटा इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं और इसका मतलब अपने आप ही ग्रॉस भी होता है. अभी हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस क्यों होता है. इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर on the purchase of final goods by the producers. These goods are to be further used in the process of production. For example, expenditure made by firms on the purchase of machinery. It is also known as gross domestic capital formation, gross capital formation and gross investment. ये नाम आपको सब लर्न कर रहे हैं. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. ये क्या है, मशीनरी की फॉर्म में है. अब मशीनरी की फॉर्म में भी हो सकता है और भी अभी हम डिस्कस करेंगे. इसका मेन पर्पस क्या होता है, फर्दर प्रोडक्शन. इट हैज़ टू कंपोनेंट्स. वन इज़ द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ऑल्सो नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. अब आपको ध्यान क्या रखना, जो अभी हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ा था और जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है इसके नाम बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर वर्ड फिक्स्ड ऐड हो जाएगा. और सेकेंड कंपोनेंट क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मीन्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. लेट्स डिस्कस दीज टू कंपोनेंट्स इन डिटेल. Fixed investment, as it is clear from the name, fixed investment refers to the expenditure incurred by the producers on the purchase of fixed assets like plant and machinery. Fixed assets are those assets which are used in the production process for several years. हम उसको बार बार यूज़ करते रहेंगे. इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. Second is fixed investment by the households in terms of construction of houses or residential construction. ध्यान रखना, जो बिल्डिंग्स होती हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी चाहे क्यों ना हो, दे विल कम अंडर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्योंकि वो एसेट्स होते हैं. एवरी बिल्डिंग हैज़ सम रेंटल वैल्यू, इसलिए जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज होते हैं या कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का पार्ट होती हैं. देन पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट कहाँ कहाँ करती है, गवर्नमेंट रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स एट्सेट्रा. सो दिस इज अबाउट द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. Next, this is about the inventory investment. Inventory investment is also known as change in stock. It refers to change in stock during the year and it is estimated as the difference between closing stock of the year and opening stock of the year. Now, what's about the gross investment? Gross investment means fixed investment. Gross investment means fixed investment plus inventory investment. अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है तभी आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड करनी है, और अगर सिंपल इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं करना. अगर फिक्स्ड वर्ड होगा तभी आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट उसका पार्ट बनेगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हैज़ टू कैटेगरीज, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. और अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उनके नाम बिल्कुल सेम है. चेक करिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. तो ध्यान आपने ये रखना है
जब आपके पास फिक्स्ड वर्ड होगा तो आपने चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या एडिशन टू स्टॉक को ऐड करना है. क्लियर बेटा? नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज अबाउट द नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स refers to the difference between exports and imports during an accounting year. Now, what's about the exports? Exports are the expenditure made by the foreigners or by the non-residents on the domestically produced final goods and services during an accounting year. The expenditure on the domestically produced goods and services is added to the total expenditure in the economy. ध्यान रखना कि जो एक्सपोर्ट्स होते हैं ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होते हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली. हमारे रिसोर्सेज, डोमेस्टिक रिसोर्सेज की हेल्प से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाहे इनको फॉरनर्स परचेज कर रहे हैं, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम और द एक्सपोर्ट्स. दैट्स वाई द एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज is added to the total expenditure in the economy. Now, what's about the imports? Imports are the expenditure incurred by the residents of a country on the goods and services produced abroad. Import का मतलब होता है जो सामान बाहर प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उसको रेजिडेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं. इट मीन्स जो एक्सपेंडिचर इम्पोर्ट्स पर किया जा रहा है उसको हम नेशनल इनकम काउंट करते टाइम डिडक्ट कर देंगे, और जो एक्सपोर्ट पर एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको हम अपनी डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे. मतलब वो हमारी डोमेस्टिक इनकम ही है, उसको हम डोमेस्टिक इनकम का पार्ट ही मानते हैं क्योंकि वो डोमेस्टिक इनकम का ही पार्ट है. क्लियर बेटा? मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज अबाउट द फॉर्मेट. नाउ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. इट हैज़ 2 पॉइंट्स, फिक्स्ड प्लस चेंज इन स्टॉक. अब ध्यान रखना, अगर फिक्स्ड होगा तो ही चेंज इन स्टॉक ऐड होगा, अगर फिक्स्ड नहीं है तो चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं होगा. प्लस नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी. ये जो आपका ग्रॉस आया था ना बच्चे, ये इस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से आया था. जो थर्ड आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है ना, अगर वहाँ ग्रॉस वर्ड होगा तो आपका जीडीपी आ जाएगा, अगर वहाँ नेट होगा तो एनडीपी आ जाएगा. अगर ग्रॉस या नेट कुछ भी नहीं गिवन, सिंपल उसने आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी ग्रॉस में होगा, इसलिए जीडीपी एट एमपी आएगा. आपको ध्यान क्या रखना, अगर वहाँ पर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो, मीन्स थर्ड नंबर पर आपका अगर नेट, थर्ड नंबर पर अगर आपका इस ग्रॉस की जगह नेट होगा तो एनडीपी एट एमपी आ जाएगा, और अगर यहाँ ग्रॉस है तो फिर जीडीपी एट एमपी आ जाएगा. अब जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी में जाना है. ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन लेस, डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड हो जाएगा, एमपी से एफसी में आना है माइनस एनआईटी. गॉट द पॉइंट? चलिए मूव टू द नेक्स्ट. दिस इज एन इलस्ट्रेशन. यू हैव टू कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी एंड जीडीपी एट एफसी. हमें पता है कि इस मेथड में हमारे पास जीडीपी एट एमपी आता है और हमारी वैल्यूज़ क्या होती हैं? वैल्यूज़ को रिकॉल करिए. नंबर 1 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर 2 गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नंबर 3 ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नंबर 4 नेट एक्सपोर्ट्स. इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा जीडीपी एट एमपी. अब ग्रॉस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर थर्ड में हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट था. अगर यहाँ नेट इन्वेस्टमेंट होता तो फिर हमारा एनडीपी एट एमपी निकल आता. ठीक है बेटा? सबसे पहले हम इन चारों को ऐड करेंगे तो जीडीपी एट एमपी आ जाएगा. 350 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 10, ये हमारा बन गया 550 करोड़. ठीक है? अब एमपी से एफसी में जाना है. जब हम एमपी से एफसी में जाते हैं तो माइनस एनआईटी हो जाता है. एनआईटी कितना है? 5 माइनस 5, इट विल बी 545. सो आपके दो आंसर आ गए. जीडीपी एट एमपी 550 करोड़ एंड जीडीपी एट एफसी 545 करोड़. नाउ look at the solution. This is the solution. Clear beta? This is the solution. So
By adding all these four, we have 550 crores. By subtracting net indirect taxes, we have 545 crores. So with this, your topic is over. So what's about your homework? Do revise the concept properly and do practice the numericals from your book, because in the next video I will send you the theoretical questions of this very chapter. Clear beta? Okay. Goodbye dear students. Stay home, stay safe. Goodbye dear students. Have a wonderful day.